આ જે ગાજર છે ને એ આંખો માટે એમાં વિટામિન એ હોય, બહુ સરસ છે. અને આમ આવળા, આ ગાજર અને આવળા આ બંનેનો પ્રયોગ કરે. આવળા અમે આપીએ પણ છીએ અને એનો જ્યુસ આ લઈ લો. અને આવળા અને ગાજર એનો જ્યુસ જે પીવે તો આ સેહત માટે બહુ જ આ તંદુરસ્તીનો મંત્ર છે. આ તો પદ્મજા આ જે બેન છે ને એ તો એને તો આંખો બહુ સારી થઈ ગઈ છે ને, તો દૂરથી એ મને જોઈ નહીં શકાય સારી રીતે. હા, તો પી લો. અને બીજો ઘરેલું ઉપાય, આ બાદામ, આ વરિયાળી, એમાં થોડીક સફેદ મરી એ નાખી દે તો આ બાદામનો પાવડર, આ સૌંફનો પાવડર, વરિયાળીનો, આમાં મિશ્રી નાખી દીધી અને આ બધું મેળવીને અને એને આ પાવડરને આપણે ખાઈ લઈએ તો એ પણ આંખ માટે બહુ જ સરસ છે. ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ અને એ ઔષધરૂપ છે, તે એને ખાઈ પણ શકે. ले आज तेरे ऊपर ही सारे प्रयोग कर देते हैं. हाँ, तो लो इसको खा लो. અને આ જે બાદામ છે ને એનો પેસ્ટ કરીને અને દૂધમાં નાખીને એ પણ પીવી શકે છે. એ પણ બહુ સરસ છે. અમે બાદામ એનો પેસ્ટ કરીને આ દૂધમાં નાખી દીધું છે. ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી અને એનાથી મહાત્રિફલા ઘૃત બનાવીએ, એનાથી અક્ષયતર્પણ કરીએ છીએ અને આપણે આગળ ઘણી બધી વિધિઓ છે એ બતાવવાની છે. એ અને આમળાનો રસ, આ આમળાનો રસ આમાં સપ્તામૃત લો, મુક્તા સુક્તિ, મોતી પિષ્ટી. ચલો પદ્મજાજી, એ પણ એને વસ્તી આપવામાં આવે, એ પાછળથી એનસથી આપવામાં આવે અને એ અંદર આ બધું જે અંદર હોલ્ડ કરી લે આ બસ્તી એનાથી અંદર હોલ્ડ કરીને અને એનાથી પણ ઘણું બધું ફાયદો થાય છે. બહુ જરૂરી છે. તો એ આ બસ્તી અલગ અલગ જુદા જુદા રોગો માટે, આંખ માટે બસ્તી, બાળ માટે બસ્તી, હાર્ટ માટે બસ્તી, આર્થરાઇટિસ માટે બસ્તી, પેટ માટે બસ્તી, ફેટી લીવર માટે, બધા જ રોગો માટે બસ્તી બહુ જ મહત્વપૂર્ણ ઉપાય છે. અને એની સાથે આ અક્ષયતર્પણ પણ થઈ રહી છે. આ જે મહાત્રિફલા ઘૃત છે ને, આ મહાત્રિફલા ઘૃતને થોડુંક આમ વામ કરીને, બહુ જ વધારે નહીં, એને ધીમે ધીમે આંખમાં નાખવામાં આવે. એ ભાઈને તો ઘણી દેરથી આ ચાલી રહી છે અને એ અક્ષયતર્પણ બહુ જરૂરી છે. એક નાનકડી વાત બીજી કહું છું. અક્ષયતર્પણ મહાત્રિફલા ઘૃતથી એ પદ્મજાએ કરાવ્યું છે, એનો પણ આપણે અનુભવ સાંભળીએ. પણ એનાથી પહેલાં આજે મારે બહુ નાનકડી વાતો બતાવવાની છે. આપ लोग तो अनुलोम विलोम कर लो पूरा. हाँ, सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुलोम विलोम. आंख માટે અનુલોમ વિલોમ, સર્વાંગાસન અને શીર્ષાસન, ત્રાટક, અક્ષયતર્પણ અને આ જે જલનેતિ સૂત્રનેતિ થઈ રહી છે, આરામ આરામથી મૂંડા ખોલીને એક નાકમાં લગાડી દીધો, બીજા નાકથી આરામથી નીકળે પછી આ. હા, અને આ ત્રિફલા રાત્રે પાણીમાં પડાવીને એનાથી આખો વાસ કરવામાં આવે અને આ નાકમાં નાખીને અને મૂઢાથી કાઢવામાં આવે આ સૂત્રનેતિ. આ પણ આંખ માટે બહુ જ જરૂરી છે. જલનેતિ, સૂત્રનેતિ, ત્રિફલાથી આઈવાસ, અક્ષયતર્પણ, એની પછી ડ્રોપ્સ અને ઘણું બધું છે એ બતાવીશ આજે. હા, જુઓ, આ ગાયનું દૂધ આમાં બાદામ નાખીને એ પીવે, એનાથી આંખો સારી થાય. બીજી વાત એ ખાસ, ગાયનું ઘી તમે દરરોજ ખાઓ અને મહાત્રિફલા ઘૃત તમે ખાઓ. બ્રાહ્મી ઘૃત તો મસ્તિષ્ક માટે, મહાત્રિફલા ઘૃત આંખ માટે રામબાણ છે. અને આ ગાયનું ઘી જ એક ચમચ આમ જ ખાઈ લે, આંખ માટે, મસ્તિષ્ક માટે, આયુષ્ય માટે બહુ જરૂરી છે. અને અમે તો ગાયના ઘીથી યજ્ઞ કરીએ છીએ, એ આંખ માટે બહુ જ જરૂરી છે. અને યજ્ઞમાં આ જે અમે આહુતિ આપીએ છીએ આ યજ્ઞમાં, અને આ જ આહુતિને
ઓમ સૂર્યાય સ્વાહા ઓમાદિત્યાય સ્વાહા નેત્રાય સ્વાહા ચંદ્રમા મનસજાતઃ ચક્ષોઃ સૂર્યો અજાયત. સૂર્યનો ત્રાટક કરો. અને આ જે યજ્ઞ શેષ છે ને એનો આ 2 ટીપા ગાયના ઘીના આમ લઈને અને આમ હાથ કરીને અને એના યજ્ઞમાં આમ શેકી લો થોડું, અને પછી એના આંખો પર આમ મૂકો. એનાથી આંખો સારી થાય. આંખની આ એક્સરસાઇઝ છે, એનાથી આંખ સારી થાય. એનાથી અને ત્રાટક એ બહુ જબરદસ્ત છે. સર્વાંગાસન, શીર્ષાસન, અનુલોમ વિલોમ, ત્રાટક, આ બધી થેરાપીઓ બતાવી રહ્યા છે આંખ માટે. જે આજે ઉપાયો છે બધા એ જે કરી લેશે એને જિંદગીમાં પછી આંખની પ્રોબ્લેમ થાય જ નહીં. આવી રીતે જુઓ, આંખની સમાનાંતર આ ગાયનો ઘીનો દીવો બાળીને અને જુઓ, સૂર્યનો ત્રાટક કરો, ચંદ્રમાનો ત્રાટક કરો, આંખની પલક ઝબકા વગેર સતત એને જોવાનો અખંડ જ્યોતને. અને આવી રીતે જોશો 1-2 મિનિટથી માંડીને ધીમે ધીમે તમે 5 મિનિટ સુધી 10 મિનિટ સુધી અમે કરાવીએ છીએ ત્રાટક. બહુ જરૂરી છે. અને જ્યારે આ 2-5 મિનિટ ધીમે ધીમે વધતા વધતા 10 મિનિટ સુધી તમે પહોંચી જશો અને એનાથી તો આંખો એકદમ સરસ થઈ જશે. પછી આંખો બંધ કરી લેવાની અને આત્મજ્યોતિમાં, આત્મવિશાંતિમાં ધ્યાન કરવાનું. એનાથી આંખ સારી રહે, બહુ જરૂરી છે. તો આ નાનકડા ઉપાયો બતાવ્યા અને ઔષધ બતાવી દઈશ. આમેલ કે રસાયણ 200 ગ્રામ, સપ્તામૃત લો 20 ગ્રામ, મુક્તા શોક્તિ 10 ગ્રામ, મોતી પિષ્ટી 4 ગ્રામ, એમાં વસંત કુસુમાકર રસ પણ 4 ગ્રામ નાખી દો અને 1 ચમચી સવારે સાંજે ખાઓ તમે. આંખ એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ જાય. આ દૃષ્ટિ, હળદર, આદુ અને લીંબુ ત્રણે 1 ચમચ લઈને એમાં પછી 3 ચમચ આ મધ નાખી દેવાનું. આ બધી 3 વસ્તુએ એક આ લીંબુ, આ સફેદ પ્યાજ અને આ આદુ, આ ત્રણેય લઈને અને પછી 1 ચમચી આમાં સમાન માત્રામાં આ મધ નાખી દેવાનું. આ તો આ ગુલાબજળ છે ને એમાં આમળાની પંખડીઓ, આમળાની જે કળીઓ છે આ મૂકી દેવાની. 24 કલાકે આ મૂકીને પછી એને ગાળીને અને આના આંખમાં નાખવાનું. અને આ બધું 1 ચમચી આ બધું લઈને, આમ તો મધ પણ નાખીએ એનાથી સારું થાય. મધ પણ બહુ જરૂરી છે આંખ માટે. અમારા જે વડીલો છે ને, છોટી માખી હોય ને અને લીંબ ઉપર લાગે, લીંબનું જે મધ હોય ને લીમડાનું, એ બહુ જ જબરદસ્ત હોય. અને આ દૃષ્ટિ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ સૌમ્ય છે જે બાળકો પણ નાખી શકે છે ને લાગે નહીં, એ તો કોઈ પણ નાખેલી આંખમાં આવી છે. અને અમે આ પતંજલિ કાજલ પણ બનાવીએ છીએ, એ પણ બહુ જરૂરી છે આંખ માટે. અને આ બધા ઉપાયો કરીને જે પોતાની આંખ સારી કરી લીધી છે એના અનુભવ સાથે આજે યોગ કરવાનો છે. તો પદ્મજા से शुरू करते हैं. પદ્મજા એ પહેલાં તો આર્થરાઇટિસ સારું કર્યું, પછી આંખ. અને જે હું કહું છું એને પાળે છે. હું કહું છું ને, જે હું કહું છું એને 100% પાળો તો તમને 100% બેનિફિટ થાય. આંખની વાત હોય કે કાનની વાત હોય કે બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ, અસ્થમા, આર્થરાઇટિસની વાતો હોય તો એકના તમે અનુભવ સાંભળશો ને તમને પણ પ્રેરણા મળશે કે આપણે આ બધું કરીને મોટા રોગોને મટાડી શકીએ છીએ. જી બેન. ओम स्वामी जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके एक शब्द मेरे लिए वेद मंत्र के समान है. मुझे
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेशन और प्रोलैप्स्ड वाल्व्स, बैक एक, यानी बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अच्छा, इतनी बीमारियां हाँ। लेके घूमती थी। न्यूरोपैथी, ये सभी प्रॉब्लम्स थे। और पिछले जैसे कि कोरोना हुआ था उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 75, 76, 77 ऐसे होता था। फिर आपके बताए हुए जैसे जैसे आप बताते थे वैसे वैसे मैं करती थी, तो आधे घंटे में मेरा 98, 100, 102 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंचता था। फिर सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए तूने तो, कोरोना हाँ, से सभी लेकर सभी चीज़, आर्थराइटिस। हाँ। आँख का भी बार बार होता था, यानी थोड़ा सा मेरा यानी हेजी दिखता था, यानी अच्छे से नहीं दिखता, धुंधलापन आ जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे वैसे पेन अनुलोम विलोम किलर खाए हैं ना बहुत पहले, बहुत सारे, यानी पेन रूमेटॉइड किलर और आर्थराइटिस। स्टेरॉइड, एनाथी आंखों नबળી પડે। मेरा टंडन फ्रैक्चर भी हो गया था, और मुझे साज और HCQS यानी ये ऑटोइम्यून डिजीज करके उसका मेडिसिन भी दिया गया था, साज और HCQS। दुनिया की सारी बीमारी तूने ले हाँ, सभी भोग सभी। रखी है। फिर आपके मार्गदर्शन से जैसे आप लाइव आने लगे आस्था में और इंडिया टीवी में, वो देख के फिर अपने आप को फिर आधा घंटा 1 घंटा अनुलोम विलोम करने लगी। और जब भी मौका मिले कपालभाति, किचन में खाना बनाते बनाते कपालभाति, भस्त्रिका, जो भी होता था वो सब करती थी। और जैसे मेरा प्रोलैप्स्ड वाल्व्स है, तो कोरोना के बाद से मेरा धड़कन और तेज हो जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे शीतली शीतकारी प्राणायाम करने के लिए, तो रात को जैसे कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ऐसे करके फिर हार्ट बीट को फिर नॉर्मल करती थी। और अर्जुन छाल, दालचीनी, ये सब लेकर मैंने बहुत करी। एक्सपीरियंस। अब आँख का बता, और आँख में कैसे फायदा किया? हाँ, और आँख जो है कि स्वामी जी को तो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, दर्शन नहीं कर पा रही थी, और मुझे बहुत दुख लग रहा था। फिर डॉक्टर से मिली, तो पंचकर्मा डॉक्टर से मिली, तो अक्षित अर्पण के लिए वो बताए। और जैसे कि दूसरा दिन जैसे मेरा अक्षित अर्पण हुआ, तो फिर धीरे धीरे यानी छोटे छोटे अक्षर भी दिखने लगे। और अब कितनी बार करा लिया? 3 बार। आज जैसे कल तीसरा बार हुआ, और आज आप जैसे कि स्टेज पे आए ना, मैं आपको पूरा एकदम आपके आंखों का भी दर्शन कर पाई, नहीं तो मैं नहीं दूर कर से पा आंखें रही नहीं थी, देख पाती थी। नहीं देख पा रही थी, यानी पूरा जो आईब्रो, आंखें, ये कुछ नहीं दिख रहा था, सब जैसे कि तो थोड़ा तुम तो धुंधला काजल धुंधला डालती दिख हो, रहा कौन था। सी काजल डालती है? ऐसे ये डालती पतंजलि हो? का काजल अभी डाल रही हूँ सब। और जो आपको मैंने बताया इसने पूरा उपयोग किया। एक काजल में पण શું છે, इस काजल में भी हमने यही डाला हुआ है। इसके अंदर कैस्टर ऑयल है, आलमंड है, जो है आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, माने त्रिफला है, यष्टि मधु है, और इसमें इसी से ही हमने तैयार किया है। तो ठीक है, अब आगे दे उनको। नीता और अनीता ने भी अपने आप को ठीक किया है। अनुलोम विलोम करो, और बच्चों शीर्षासन, आधे शीर्षासन और आधे सर्वांगासन करो। शीर्षासन, नमस्कार सर्वांगासन और अनुलोम विलोम परम औषधि छे। बाबा जी। ओम। ओम। बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा पित्त बनता था, पित्त से मेरे आँख खराब हो हाँ, मैं बोल रहा था ना अभी, पित्त से गई। भी मेरे आंखें आँख गड़बड़। बिल्कुल ख़राब हो गई थी। जब से मैं योगा करने लगी, मेरे आँखों में बहुत सुधार है। और मुझे कोरोना हुआ, बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ। मैं सोए सोए योगा करती थी, थोड़ी थोड़ी सांस लेती थी ऐसे, फिर मुझे झपकी आ जाती थी, मैं वही सांस योगा ही में रहती थी। फिर मेरे को यहाँ मेरा ना ऑक्सीजन कम नहीं हुआ। और दवाई मैंने आपकी जो भी दवाई थी सब काढ़ा, सब पूरे परिवार पूरा सारा करा। जब मैं अणु तेल डालती थी नाक में, तब मुझे बहुत आराम मिलता था। ये बहुत जबरदस्त चीज है अणु तेल। और मेरा बेटा है, ये पहले तो नहीं करता था कुछ भी, अब इसको पूरा सुबह उठ के ये अपना मोबाइल खोल के बैठ जाता है। तब से इसने अपना आँख मतलब अच्छा कर दिया। बहुत पानी चलो पीता इसी को था। दो, विमल सिंह, तुम तो पहाड़ से हो ना? जी, उत्तराखंड से है, अभी उत्तराखंड दिल्ली से आई है। हाँ, उसको दो, विमल को दो। आजकल यंगस्टर्स भी गजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, और उससे स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों की समस्या हो रही है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा दिन भर काम लैपटॉप पे ही रहता है, तो इस वजह से काफ़ी आंखों से पानी वगैरह आता था।
तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, पर योगा जब से स्टार्ट करा है मैंने, अभी मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो काफ़ी बेहतर आराम ये मिला तो है। आंखों में फायदा, और क्या फायदा हुआ? और मेनली मेरे गले में बहुत खिचखिच रहती थी, बट आजकल मैं यहाँ पे भी ऐसे घूम रहा हूँ ठंड में, तो बिल्कुल खिचखिच का नामो निशान नहीं है। और तो भी काफ़ी चीजों अच्छा में लगा। फायदा पा लिया। हाँ, और बाकी बॉडी तो है ही, बाकी माइंड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट। बॉडी माइंड सोल के लिए है योग तो શીર્ષાસન જે કરી શકે એ શીર્ષાસન કરી લેવાનું, જેમ અમારા યોગાચાર્યો કરી રહ્યા છે. સર્વાંગાસન કરી લેવાનું. શીર્ષાસન સર્વાંગાસન એ બધાને કરવાનું છે, અને જે એ નહીં કરી શકે એનો અનુલોમ વિલોમ કરી લે છે. ઇनको देना. ओम स्वामी जी, मैं मोदी नगर से आया हूँ। जी बेटा. मुझे नींद नहीं आती थी हाँ. 4 साल से। नींद की दवाई ले रहा था, और अब छूट गई यहाँ पर आकर। नींद की दवाई छूट गई. कितनी 4 साल से दवाई ले रहा हाँ, है. छोटा जवान बच्चा है, डॉक्टर ने लगा दिया था। डॉक्टर दवाओं पे डाल देते हैं. चलो, अब नींद अच्छी आने लगी. क्या क्या कर रहा है? सिरोधारा करवाई, मेधावटी ली, हाँ, और ये करा, अनुलोम विलोम किया. और कपालभाति। चल, बहुत आशीर्वाद. अगले भाई को देना. ओम स्वामी जी, ओम मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, दिल्ली में हूँ। जी. आपको बहुत फॉलो करते हैं, और पिछले 1 साल से तो लाइव जब से आप आए लगे तब से और ज़्यादा मैंने एकदम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं. उससे मेरा कोई एलोपैथिक दवाई सब छूट गया, मेरा कोई दवाई खाने का नौबत ही नहीं आया है. ये रहा. और पूरा बीपी शुगर कुछ भी मैंने नहीं होने दिया. हमने अपने आप को रोक के रखा है. और आंखों में भी ना, हमको कंप्यूटर में काम ज़्यादा रहता है, सुबह से शाम तक कंप्यूटर में काम करते हैं. तो यहाँ जैसे आया तो आई वॉश करवाया, फिर त्रिफला से आई वास, त्रिफला आई वॉश और अक्षय संख तर्पण से ना, प्रक्षालन से उदरवास हाँ. हो जाता है. वो सब करने के बाद एकदम आंख का ना एकदम इतना तेज अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत स्पष्ट दिख रहा है हर चीज़. और दूसरी चीज़ मेरे को ना सबसे बड़ा समस्या था, घुटनों में दर्द चालू हो गया और खटपट आवाज़ आने लगा. तो यहाँ हाँ, जैसा आया, खटपट की आवाज आती है फिर. हाँ स्वामी जी, तो यहाँ जो बने जानू बस्ती जैसे करवाया, 3 दिन हुआ, एकदम दर्द पूरा गायब हो गया. ऐसा लग रहा पूरा फिट हो गया और घुटने का पूरा समस्या मेरा खत्म हो गया. पद्मजा ने जो है हाँ अक्षय तर्पण करा लिया, इसने बस्ती करा लिया. हाँ स्वामी जी. बहुत आशीर्वाद. अगली बेटी तो सर्वांगासन भी कर रही थी. बेटा, तुमने क्या फायदा पाया? नमस्ते बाबा जी, मैंने थायराइड ठीक किया है. मुझे 17 साल की उम्र से थायराइड था. अभी कितनी उम्र है बेटा आपकी? 26 साल की हूँ. 26 साल की. क्या 7 नाम है? साल- शिवानी. शिवानी. लो. 7 साल तक मैंने एलोपैथिक दवा खाई, और उसमें मैं और बीमार हो गई. डिप्रेशन की भी दवा खाने लगी, एंजाइटी की भी. लेकिन बस आंवला एलोवेरा लिया और उज्जाई करती थी और कपालभाति, मेरी सारी दवाएं चली गई. इसलिए मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ. क्या बात है. देखो, छोटी सी उम्र है बस गुड़िया आपकी की. वीडियो देख के फ्री में ठीक किया मैंने. वीडियो देख तो- देख करके मुफ्त में ठीक कर हाँ, दिया. मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ. थैंक क्या यू करते हो बेटा? बाबा जी. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, अभी गेल इंडिया में अप्रेंटिस कर रही हूँ. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू बाबा जी. कितने दिन हो गए हैं? अभी तो मेरा 3रा दिन है. बहुत आशीर्वाद. अब बताओ, ये बेटी ने वीडियो देख देख के, तभी मैं देख रहा जो ये सर्वांगासन भी अच्छा कर रही है, क्योंकि इसको सर्वांगासन और हलासन बताया हुआ था थायराइड के लिए, उसने किया. हाँ. उज्जाई भी किया. हाँ, वो। स्टार्ट उज्जाई और कपालभाति से किया था. कपालभाति, उज्जाई किया. हाँ. बहुत आशीर्वाद. थैंक यू बाबा जी. बहुत आशीर्वाद. अब तो ये पद्मजा जो लंगड़ी लुल्ली हो गई थी, अब तो ये सर्वांगासन कर रही है, हलासन कर रही है. जी भाई. स्वामी जी नमस्कार. नमस्कार. ओम. स्वामी जी, मैंने एक बार जैसे शुरू में व्हीकल लिया था, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने कहा तेरे को चश्मा चढ़ेगा दूर का. तो दूर का चश्मा जो है ना जी चढ़ गया. फिर धीरे धीरे आपसे जैसे टीवी में आपका देखा ना जी प्रोग्राम सारा, फिर जुड़ गए. और उसके बाद फिर जो है ना जी चश्मा धीरे धीरे उतर गया जी. अब मैं रात को भी बिना चश्मे के गाड़ी चलाता हूँ जी. और नज़दीक का तो मैं कभी लगा ही नहीं मेरे को जी. अब जो है, पहले तो दिन में नहीं चला सकते थे, अब रात में भी बिना चश्मे रात के को गाड़ी बिना चला. चश्मे गाड़ी चलाता हूँ. क्या नाम है? 63 साल उम्र है नाम मेरी. क्या है आपका? मेरा सतवीर कौशिक है जी. हाँसी से आया हूँ, हाँसी से. हिसार के पास है हाँसी जी. और BSNL में SDO रिटायर आया हूँ जी. और कभी भी कागजों का बहुत काम किया, कंप्यूटर भी किया, कभी चश्मा नहीं चढ़ा जी. रिटायरमेंट के बाद तो जो है ना, योग अभी बहुत भी जरूरी है. मैं जैसे आपने पढ़ाया ना बोतल पे ये
दवाइयों का नाम ये मैं पढ़ सकता हूँ बिना चश्मे के। और जिंदगी में कभी चश्मा नहीं लगेगा जी, क्योंकि योग नहीं छोड़ा जी जब से आपसे जुड़े। ये बात है। योग नहीं छोड़ेंगे। एक दफ्तर में कहने लगा क्या अब भी योग करता है? मैं कहा जब तक सांस रहेगा जब तक करूंगा। अब बताओ, लोग बावड़े बोले अब भी योग करता रहा, अभी तो करने का टाइम, बुढ़ापे में माने 60 के बाद तो जरूर योग करना। एक बात कहूँ स्वामी जी, मेरे अरे आप को तो बूढ़े लगे नहीं रहे। ना जी, बुढ़ा मैं 75 के बाद मानता हूँ बुढ़ापा। ये बात ठीक है। और दफ्तर में कहने ना लगे 75 नहीं तो 75 का हो जाएगा, तब 90 के बाद मानेगा। देखो जी क्या हाँ। होगा। बाकी दफ्तर में हंसने लगे, कह लगे ये तो रामदेव है हंसी का। हंसी का रामदेव, ये ठीक है। सीधा नाम काट दिया मेरा। नाम काट दिया, बढ़िया किया तेरा। मैं कहा भाई कुछ भी कह लो, मैं योग कौन छोड़ूं। ना ना छोड़िए मत, बहुत आशीर्वाद। नुमिले कम तक और चलो नंगे चलो बच्चों, देखो बगुला भी नंगे चल रहे हैं। अभी इनकी आंखों में कभी कोई समस्या नहीं थी। ये दूर से मछली देख ले, देखो ये नंगे चले हैं, घास के ऊपर देखो चल रहे, सारे बगुला नंगे चल रहे हैं। बैक वॉक करो, फ्रंट वॉक करो, ऐसे उधर तक लंबा राउंड लेके आओ। हाँ? एक पीछे पीछे चलो, ऐसे बैक जो है ये बैक वॉक भी अच्छी होती है, फ्रंट वॉक भी ऐसे नंगा चलना चाहिए। शुरू अब ठंडी में तो सुबह घास में नंगा चलने के लिए बोले तो आदमी का जी मेरी उंगली सुन्न हो जाएंगे। अरे तेरी आँख और तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। लोग गांव में कहे ना इसका दिमाग खराब है, जिसका दिमाग खराब होने से ना घास पे नंगा चलाओ सुबह सुबह, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, आंखें भी ठीक हो जाएंगी, दृष्टि अच्छी हो जाएगी। फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी गीत और श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान करना चाहिए। जितना मन शांत रहेगा उतनी आंखें अच्छी रहेंगी। तली हुई चीज़ें ना खाएं, पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, पानी ज़रूर पिएं। सुबह उठ करके ठंडे पानी से मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे। छोटे छोटे उपाय करेंगे। चलो भ्रामरी गीत करते हैं। लंबे गहरे श्वास भर के भ्रामरी उद्गीत। जे ओंकार नो गायत्री नो ध्यान करशे ने नेत्र ज्योति सारी રહેશે જ એને અંતઃ જ્યોતિ પણ જાગૃત થશે, અંતરદૃષ્ટિ એની ખુલશે, યોગથી દૃષ્ટિ પણ મળે જીવનની અને દૃષ્ટિ પણ સારી રહે। તો આવી રીતે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારે સાથે યોગ કરતા રહેજો અને આપણી દૃષ્ટિને સાચવીને આખા જીવનને તમે ઉત્સવ બનાવો। રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો, સોદાગર કોણ?